नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीस पब्लिक न्यूज़। आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस ताज। नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल पीस पब्लिक न्यूज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नाजरीन, आज की ताज़ा खबर ये है and at the same time people might again misunderstand or take it wrong that we are snatching away and taking away the rights from the deserving students. No, we want the rights to be given to the rightful people and the people who really are deserving, and I am standing here for protecting the right of the poorest of the poor people. And I'm sure every political party stands here to protect the rights of the poorest of the poor people first. And we also, and the government will also, protect the right of the poor student. We will not take away the rights of the poor students. This doesn't mean that the overseas scholarships will come down. This means that more deserving, needy, poor students will get the benefits of going abroad and studying. More poor, needy and the real deserving students will get the MTF and RTF, sir. Like, sir, let me come on record and say that, yes, there are many things in which I criticize, but in last 10 years, sir, a wonderful work has been done by the BRS government where, sir, the Muslim minority population, as per the latest caste, is less than 50 lakhs, sir. But only the MTF, RTF, overseas, and these scholarships, sir, only the scholarships I'm talking about, 27 lakh change Muslim students were benefited, sir. It is a wonderful work which has been done by the BRS then. I'm not denying that. But there are some corrections which are required, sir. So which I thank, sir. And once again I'm saying, and the media people, sir, media का पूछो मत, sir, एक बोले तो एक मतलब निकालते हैं. तो हम यहां पे खड़े रह के गरीब के हक को छीनने की बात नहीं कर रहे हैं, एक गरीब को उसका हक देने की बात कर रहे हैं. प्लीज मेक श्योर, सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर. और ये माइनॉरिटीज के इश्यूज के ताल्लुक से, सर, एंड फर्स्टली बिफोर गोइंग इनटू दैट, सर, द डाइट चार्जेस, द एलोकेशन हैज बीन इंक्रीज्ड by rupees 40 crore, sir, compared to 24 and 25, which amount is not sufficient, sir. Sir, ये TGMREIS 7-month rents are pending, sir. Minority residential schools के 7 महीने के rents pending है, sir. मैं उम्मीद करूंगा कि हुकूमत वो rents को देगी. Sir, owners बहुत परेशान है, sir. Sir, also, sir, the department is paying almost 7 crores toward rents of these buildings, and about 49 crores rents are due to the owners, sir. Sir, when I talk about the minorities, sir, मैं minorities की बात इसलिए कर रहा हूं, sir, कि in my governor's speech also I had mentioned, in my budget speech also I have mentioned, sir. But the reason why when I initiated, I said that I rise to speak on these demand, knowing not whether I'll get a reply, knowing not whether I'll get a chance for a clarification. Sir, in my governor's address also I have spoken about Red Hills incident, sir. My learned friend Nampally MLA is here, sir. In this house, sir, finance minister साहब had promised and said कि वो रेड हिल्स में, लाल टेकरी में जो आग का हादसा हुआ, जितने लोग उसमें मरे हैं उन सबको कंपनसेशन देंगे. सर, वो देने के बाद में वो कंपनसेशन का आपने इस हाउस में वादा किया, सर. सर, व्हाट इज द सैंटिटी ऑफ दिस हाउस, सर? अगर कोई ऐलान इस हाउस में होता है और वादा इस हाउस में होता है और उसको भी पूरा नहीं किया गया, तो फिर हम कहां जाना, सर? सर, हम कहां जाना बताइए, सर. सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर. वो रेड हिल्स के जो वादा करें आप उसको पूरा करिए, सर. सर, अगेन, सर, when going further ahead, sir, the central scheme MSDP, sir, now PMJVK, the central government and the state share cost in the ratio of 60-40, sir. The government of India has sanctioned an amount of 1,170.33 crores. Central share is 712.81 crores. State share is 457 crores, sir. जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा आ गया, सर, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा आ गया माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए, उसके 160 करोड़ रुपया
स्टेट गवर्नमेंट अपने पास अपने खजाने में रोक कर उसको कहीं और खर्च किया है। मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पूरे पैसे जो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए रिलीज कर चुकी है, हमारे अकाउंट में आ चुके हैं। जो शेयर माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स का है वो उनको दे दीजिए, जो शेयर बीसी स्कूल्स का है वो उनको दे दीजिए, जो शेयर एससीज का है उनको दे दीजिए। बट व्हाट इज हैपनिंग, द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट रिलीजिंग। पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे पैसे रिलीज नहीं कर रही है, जितने कर रही है उसमें हमारी हक तलफी हो रही है, लेकिन वो जितने कर रहे हैं उसमें से भी अगर आप रोक लेंगे तो ये इंसाफ कहां से होगा सर? सर अगर आप वो पैसे दे देंगे सर तो 30 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स विल बी कंप्लीटेड सर। कंस्ट्रक्शन रुक गया है और उनको 60 करोड़ अगर मिल जाए तो 30 रेजिडेंशियल स्कूल्स कंप्लीट हो जाएंगे सर। वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेटेड कैंपस 200 करोड़। अरे सर, किसी शायर ने खूब कहा है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। अब वो 200 करोड़ कब आएंगे, वो बिल्डिंग कब बनेंगी? अरे भाई ये 60 करोड़ दे दो भाई, 200 करोड़ के लिए 200 सलाम करेंगे, 60 तो दे दो आप। जो आ चुका है पैसा, जो पैसा आ चुका है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अमाउंट आया है स्टेट गवर्नमेंट उसको रिलीज करेगी सर। और उसमें सर ये और एक मैं ये कहना चाहूंगा अबाउट दिस न्यू राजीव युवा विकासम to the Minority Finance Corporation for implementation and allocation in 25-26 for the scheme is rupees 840 crores, sir. Sir, I may point out for the Rajiv Vikasam scheme, the allocation for SCs, STs and minorities and EBCs are made by the respective departments, sir. However, the Minority Finance Corporation faces severe shortage of staff as most of the senior staff is retiring, sir. तो मैं जैसा कि स्टाफ के बारे में कहा हूं सर, ये स्कीम भी कामयाबी से इंप्लीमेंट नहीं होगी सर। इन दिस राजीव युवा विकासम सर, आई हैव स्पोकन बट यू नो सर, द नो रिप्लाई वाज बीइंग गिवन सर। इन दिस आई हैड स्पोकन एंड आई सेड सर कि सर कुछ करिएगा सर, इसमें आप जून में आप बेनिफिशियरीज को सेलेक्ट करेंगे बोल रहे आप, ठीक है, सेलेक्ट करिए, बहुत अच्छा है, लेकिन जिसके पास राशन कार्ड नहीं है सर, हाउ शुड ही अप्लाई सर? And in the BRS government time, sir, one individual was sanctioned a loan, check was issued, amount was not released, but he's that A is shown as he is not eligible to apply. सर मुझे सैंक्शन हुआ लेकिन पैसा नहीं मिला, लेकिन अब मैं ये स्कीम में देना चाहता हूं, मुझे इनएलिजिबल बताया जा रहा है, राशन कार्ड्स नहीं है, तो ये कैसे होगा सर? सर these are the correction. Sir, everybody talks about the guarantees, 6 guarantees. Yes, I also spoke about the 6 guarantees, sir. And I will be speaking about the 6 guarantees till the time the government, fulfill all its promises of fulfilling all the 6 guarantees. और वो 420 जो promises किए गए 364 every day में करना है, वो जब तक नहीं करेंगे हम पीछे लगे हुए रहेंगे, आपको करो 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 बोलेंगे और 5 बरस बाद आवाम फैसला करेगी। लेकिन कम से कम इन चीजों में तो आप इंसाफ करिए, जब होना है होगा। ऐसे होगा ऐसा कि इफ यू वांट टू कम टू पावर यू हैव टू मेक ऑल promises, ये भी दे देंगे, वो भी दे देंगे, ऐसा भी दे देंगे, ऐसा भी कर देंगे, हाँ वहां से वो इधर से लाएंगे। सर मैं जस्ट ऑन अ लाइटर मोमेंट, आई मीन नोबडी शुड फील वेरी बैड अबाउट इट सर। मैं एक किस्सा सुनाया था सर असेंबली में, बहुत चला था, कानों के बारे में, तूने मेरे कान को खुश किया, मैंने तेरे कान को खुश किया। एक और एक किस्सा सुनाता हूं सर। सर एक दो बहुत बड़े फेकूस थे सर, फेकूस जो हमारे हैदराबादी दक्षिणी जबान में बोलते, फेंकना मतलब बस झूठ बोलना, फिराना, कुछ तो भी बोलना। तो दो फेकूस थे सर और बहुत फेमस हो गए सर, अरे ये बहुत जबरदस्त फेंकने वाले। एक दिन दोनों फेंकुआ एक जगह पे मुलाकात हो गई सर, दोनों की। तो अब दोनों जब फेंकुआ एक जगह मिल गए तो एक फेंकू सोचने लगा, अरे बाबा इन्हें जबरदस्त फेंकने वाला है, अब मैं कैसा फेंकना, कैसा करना, क्या करना। तो अब एक पहला फेंकू अब शुरू करा सर। पहला फेंकू ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, पहला फेंकू बोलने लगा, हमारे पास तुम्हारे को मालूम
हमारे पास इतनी बड़ी, इतनी जमीन है, इतनी जमीन है, इतनी जमीन है कि ऐसा हम बीज डालते 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 जब हम वापिस आते हैं, वापिस आए जब तक फसल तैयार हो जाती है। इतनी जमीन है हमारे बाबा के पास, हमारे दादा के पास। ऐसा बीज फेंकते 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 आए जब तक फसल तैयार। अब दूसरा बोला सर, दूसरा बोला अबा ऐसा, तब मुझे तो जबरदस्त बात बोलना है। तो दूसरा क्या बोला मालूम सर, हमारे बाबा के पास, हमारे दादा के पास, हमारे पास एक बड़ा बंबू है। बंबू मतलब मालूम सर, दैट बंबू हमारे तेलंगाना के लोग समझते हैं ना सर, बुम्बुलू, यस बुम्बुलू, यस। तो बंबू है बोले, वो बंबू है। तो बोले ऐसा बंबू है, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा बंबू है कि हम आसमान की तरफ करके इधर का तारा निकालते इधर डालते, इधर का निकालते इधर डालते। तो अब उसके बाद वो पहला आदमी पूछा सर, पहला आदमी पूछा अब बाबा बाबा इतना बड़ा बंबू है, ओहो हो, तो रखते का बाबा बोल के पूछा। तो उन्हें क्या बोले मालूम? नहीं मालूम, तुम्हारे बाबा के खेत में। कहां रखते? तुम्हारे बाबा के खेत में। ऐसा इधर का तारा इधर। तो मैं ये कहूंगा कि हमको काम की जरूरत है सर, काम की जरूरत है। ये होना दे देंगे, वो होना दे देंगे, ये कर देंगे, वो दे देंगे, जेवर दे देंगे, तोला गोल्ड दे देंगे, नौकरी दे देंगे, और किसान को ये दे देंगे, बस में ऐसा दे देंगे। अरे सर सब दे देंगे तो सरकारी खजाने में क्या रहेगा? यही है सर। तो इसलिए एक बात कह रहा था, nobody should feel offended. एक लाइटर मोमेंट पे I said I never wanted to target anybody, but I am not standing here to say that ना मेरे पास उतना बड़ा बंबू है ना उतनी जमीन है। अब बंबू इधर होगा, जमीन इधर होंगी, मैं बीच में फंसा हुआ हूं सर, जरा हमारा कुछ काम करिए, यही आपसे बोलूंगा सर। और माइनॉरिटीज के वेलफेयर के ताल्लुक से भी कहूंगा सर ये आई हैड ऑलवेज बीन डिमांडिंग सर। अब नेक्स्ट उसमें बोलता हूं भाई, नेक्स्ट उसमें बोलता हूं। यस बिल्कुल सही है, आपकी बात सही है सर। तो ऐसे हो गया है सर, एवरीबडी इज जस्ट मेकिंग प्रॉमिसेस सर अबाउट द स्टडी सेंटर सर, स्टडी सेंटर सर आई हैड रिक्वेस्टेड दैट एवरी माइनॉरिटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट शुड हैव अ स्टडी सेंटर सर। वी हैव ओनली वन स्टडी सेंटर इन निजाम कॉलेज सर, एंड आई वाज रीडिंग इन द डिमांड, वन स्टडी सेंटर हैज बीन अप्रूव्ड इन निजामाबाद sir. There should also be one study center in Karimnagar, in Nalgonda, in Khammam, in all the districts sir. If we do not have a place, we have many minority residential schools and colleges. There we can start a study center for the students, where we can give a training for NEET, EPSET, we can give training for LAWCET, we can give a training for IIT, JEE and everything sir. लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं सर। सर आई एम गोइंग फर्दर एड सर, मैं आपसे यह भी मुतालबा करूंगा सर कि माइनॉरिटीज के लिए 3000 करोड़ का वादा तो किया गया, लेकिन एक्सपेंडिचर कितना है सर? 1500 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं हुआ सर, 1500 करोड़ भी नहीं हुआ सर। सर मेरे पास पूरे डिटेल्स है माइनॉरिटी के सर, और माइनॉरिटी के जब हम डिटेल्स देखते हैं सर, मोर देन 700 करोड़ अगर गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ टिमरीज के लिए गए हैं सर, टिमरीज के लिए गए हैं सर। अबाउट द हज कमेटी ऑल्सो आई हैव स्पोकन, नोबडी रिप्लाइड सर। सर व्हेन द बीआरएस वाज देयर, हाजी को खाना खिला दिए, उनको रख दिए, और उसके बाद में वो पैसे हज कमेटी के देना था नहीं दिए। कांग्रेस वाले आए, वो लोग भी खिलाए पिलाए। अब तक सर उनके 3 करोड़ रुपये वो सप्लाई कंपनी वाले के पैसे नहीं दे रहे हैं सर। वो हज कमेटी से, हज हाउस से हट नहीं रहा है, खाने के पैसे अब तक नहीं दिए गए सर। ये लोग, वो रमजान में बीआरएस की गवर्नमेंट जब थी, हमारे केसीआर साहब दिल वाले चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त मुसलमानों के लिए बहुत काम किया उन्होंने सर। रमजान में साड़ी देते थे, कपड़ा देते थे। अब रमजान में कुछ भी नहीं मिल रहा सर, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक दावत मिलती है चीफ मिनिस्टर साहब की, इफ्तार की दावत, आ जाओ सर। हम बोलेंगे सर व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दैट सर कि आप ये इतने फंड्स है दे दीजिए सर। ये इसमें व्हेन वी सी सर द स्टडी सेंटर के लिए असिस्टेंट टू सीईडीएम सर, हज कमेटी, इफ्तार सर। नाउ
सर इसमें सारी चीजें हैं सर। उर्दू एकेडमी सर, उर्दू एकेडमी के कंप्यूटर सेंटर्स है सर, उर्दू एकेडमी के कंप्यूटर ऑपरेटर्स को लिया गया सर। आज भी 5,000 रुपये में बेचारे काम कर रहे हैं सर। 5,000 उनकी तनख्वाह। 5,000 में कौन काम करते सर? I mean, the BRS government wanted to remove them because computer centers were not operational and they were not functional. So on the demand of MIM, we said कि don't take them out, at least take them in minority department. सर जब उनको ले लिया गया तो कम से कम तनख्वाह तो अच्छी देनी चाहिए सर। सर हम देख रहे हैं सर कि माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी हो रही है सर। ये ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट MFC एंड CFS में सर the target is 0.8% sir. Sir, again, scholarship to minorities, MTF 37%. Scholarship to minority is 31%. On your cap scheme, sir, 10%, sir. अब आप मशीना दे रहे हैं, बोले किसको दे रहे हैं सर? मशीन किसको दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, पता ही नहीं है सर। कोई स्कीम का नहीं है सर। सर and if we have to see sir, it is a very bad state sir. Coaching sir, Telangana students का sir, I'll take some time sir. Sir, I'll take some, no sir, please sir, I request you sir, because इतने डिमांड है सर। ये इतने डिमांड में अब हम बोल तो ले रहे हैं सर, बोलने तो दीजिए, हमारी बात का जवाब भी नहीं आता सर। प्लीज सर ये इसमें आप वक्त दीजिए सर। मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं पैनल स्पीकर सर, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन पे भी जाना है सर। और सर मैं बार ये मुतालबा कर रहा था, बार मैं मुतालबा कर रहा था। हाउस हाउस के बाजू की बिल्डिंग है, आप हाउस हाउस की बाजू के बिल्डिंग को आप एक ही जगह पे माइनॉरिटी के पूरे डिपार्टमेंट्स को लाइए, वो बिल्डिंग को कंप्लीट करिए। अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। एंड रिसेंटली निजामाबाद में एक हादसा हुआ कि एक बेचारे रोजेदार को पीटा गया, मारा गया। उसका गुनाह क्या था? सरकारी कागजात थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो गेरुआ रंग के कपड़े में ले जा रहा था, उसको मारा गया, पीटा गया। सर हम नफरत नहीं चाहते, हम डिवीजन नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि यहां पे मोहब्बत हो, गंगा जमनी तहजीब हो, हिंदू मुसलमान से मोहब्बत करें। लेकिन आज सिर्फ नफरत की बुनियाद पे बांटा जा रहा है सर। आलेर एनकाउंटर किस तरीके से मार दिया गया, पुलिस की कस्टडी में मार दिया गया। आज भी उनके अफराद खानदान इंसाफ के लिए आवाज दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने गोलियां मारी और पुलिस कस्टडी में रहने वाले को कत्ल कर दिया, उनकी जान ले ली, उनके साथ उन खाती पुलिस वालों को सजा दी जाएगी। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ सर। ऑन आवर डिमांड प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी सर, CBCID इंक्वायरी वॉज ऑर्डर्ड सर। सर व्हाट इज द रिपोर्ट ऑफ CBCID सर? क्या हो रहा है सर? नथिंग इज हैपनिंग सर। सर what is and also a committee was constituted to go into Aler inquiry. उसकी रिपोर्ट क्या है सर? वो भी दीजिए, सामने लाइए। कांग्रेस हुकूमत आने के बाद से भी 2-3 मसाजिदों पर हमले हुए, शमशाबाद में एक मस्जिद शहीद हुई थी। तो आज हम ये चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो इसलिए खड़े हैं कि हम नहीं चाहते कि फिरका परस्त ताकतों को एक हिम्मत मिले आगे बढ़ने के लिए। हम फिरका परस्त ताकतों के कदमों को बढ़ने से रोकने के लिए आपके साथ खड़े हैं, दस्तूर और सेक्युलरिज्म के तहफ्फुज के लिए आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे और मुसलमानों के मसाइल पर तवज्जो नहीं देंगे तो नहीं होगा। सेकंड सर्वे की रिपोर्ट आई वक्फ की, उसको आज तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि सेकंड सर्वे को आप गजीट नोटिफिकेशन देंगे और उसको करेंगे सर। एंड ऑल्सो सर, एन अमाउंट ऑफ ₹361 करोड़ इज ड्यू टू वक्फ बोर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द रोड वाइडनिंग सर। जितनी रोड वाइडनिंग हुई है उसके 360 करोड़ ड्यू है वक्फ बोर्ड को। मैं उम्मीद करूंगा कि गवर्नमेंट वो रोड वाइडनिंग जो करे हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज को लेकर, उसका अमाउंट वो वापस वक्फ बोर्ड को दे देंगे सर। सर ऑल्सो सर, ये मैंने बार बार कहा है और फिर कहूंगा कि माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जो आपने जिसका वादा किया था टू प्रोवाइड 1,000 करोड़ एनुअली टू फैसिलिटेट सब्सिडाइज लोन फॉर जॉबलेस माइनॉरिटी एंड यूथ, ये इसके लिए भी आपने राजीव युवा का आगाज किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप कामयाबी से लेके जाएंगे। और आपने बहुत वादे किए हैं सब प्लान का,
वो भी पूरा करने के लिए मैं आपसे मुतालबा करूंगा। इमाम और मौज़नों को 5,000 के बजाय 10,000 देंगे बोल के आपने वादा किया था, 12,000 देंगे कहा, 10 और 12,000। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप ये भी कब इसका करेंगे। एंड ऑल्सो अबाउट शादी मुबारक सर एंड कल्याण लक्ष्मी स्कीम फॉर SC, ST, BCs and EBCs are made from the budgetary grants for the respective departments of these communities, sir. The Congress manifesto has promised to provide rupees 1,10,000 grams of gold and Indramma gift to Hindu girls and 1.6 lakhs to minority girls, sir. I would like to know when assistance will be raised under Shadi Mubarak and the provisions of 1 Tora gold to be taken up under Karyana Lakshmi, sir. Sir, coming to Panchayat Raj, sir, all the rural and urban local bodies except the GHMC and a few municipal corporation municipalities are functioning under special officers as the term of their elected bodies expired. I urge the government to announce the schedule for the conduct of election to Gram Panchayat, MPTCs and ZPTCs in the municipalities and municipal corporation in the state without further delay, sir. Sir, about this pension, sir. Sir, when we talk about pension, sir, I've been forgetting, sir. Sir, one most important thing, sir. So the thing is that, sir, आज से 3 साल पहले कोविड had struck, sir, और कोविड की वजह से सारी दुनिया रुक गई थी, कई लोगों की जाने गई. Sir, you're giving this pension. I have been demanding from long, sir. I want to make the same demand to the government, Congress government, sir. Sir, COVID में, sir, the health staff, doctors, nurses, everybody, many doctors, they lost their life treating the COVID patients. The state government have not given them a single rupee also for all those doctors and the health people and the nursing staff or the doctors or any other technicians and other staff who were part of the COVID force treating the COVID patients, sir. Sir, not only this, sir. Sir, when I talk about this Asra pension, sir, many children have lost their parents in COVID, sir. सर, आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे आपके जरिए पैनल स्पीकर साहब हुकूमत से अपील करूंगा, मुतालिबा करूंगा कि कोविड में किसी भी बच्चे के मां और बाप का अगर इंतकाल हुआ कोविड की वजह से, तो आप उन बच्चों के लिए भी कुछ पेंशन दीजिए सर, उन बच्चों के लिए कुछ सेंटर्स खोलिए सर, उनकी मदद कीजिए. देयर आर मेनी सच चिल्ड्रन सर हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन कोविड सर. Or many doctors. There was, I'm not remembering, sir, one Muslim girl doctor who lost her life treating the COVID patient in Gandhi Hospital, sir. She lost her life, sir. Sir, now, और उस Muslim doctor, lady doctor, sir, who lost her life, एक पैसा government की तरफ से नहीं दिया गया. Sir, and it is moreover so sad that one hospital was converted as for the COVID treatment, sir. But COVID was not, treated under आरोग्य श्री सर. अगर आरोग्य श्री में कोविड को भी इंक्लूड किया जाता तो जरूर बहुत सी जानें बचती थीं, बहुत से घर उजड़ने से बच सकते थे. लेकिन बार बार बोलने के बावजूद भी आरोग्य श्री में कोविड को नहीं लिया गया था सर. बहुत सारी गलतियां हुई हैं. तो मैं उम्मीद करूंगा सर, among the major schemes implemented by the Rural Development Department are Asra, now renamed as Chayuta Pension, besides financial assistance to women, self-help, Dwarka groups, etc. Sir, the Congress has promised to enhance the monthly pension to rupees 4,000 for the senior citizen in video, single woman, BD workers, toddy tappers, weavers, and AIDS and filariasis and kidney patients, and rupees 6,000 to the disabled person. Currently, these pensions are paid on the existing rates only, and lack of fresh applications are yet to be processed and sanctioned, sir. Sir, नए बहुत सारे नए applicants अप्लाई करना चाह रहे हैं. राशन कार्ड का जैसा हाल है ना सर, वैसे ही पेंशन्स का भी है. मैं आपके जरिए हुकूमत से अपील करूंगा कि पेंशनों को खोलिए सर. Many deserving people are not getting pensions, sir. And I would also say that there is a few corrections needs to be done in the pensions also, sir. We need to see that are the beneficiaries the real eligible true beneficiaries or not. Because what is happening is that the real true beneficiary is not getting the benefit, sir. Sir, sir, also the budget, the outcome budget for 2025-26 point out that under the scheme the rate of pension is rupees 2,016 per pensioner as
per month in respect to all categories of pension and rupees 4,016 per pensioner per month for disabled person. This means the pension amount under Chayota will be enhanced in next financial year also, sir. Will not be enhanced, sir. ऐसा दिखता है कि next financial year में भी नहीं होगा. Sir, I would like the rural development minister, Madam Sitaka Madam, to clarify on this के pensions के बारे में. So the Telangana government has targeted to empower 1 crore women and make them entrepreneurs under Indra Mahila Shakti scheme for arranging assistance of 1 lakh crore through bank linkage for them over a 5-year period. I would like the Minister Sahiba to provide details on the disbursement of interest-free loans of rupees 21,632 crores to the beneficiary as soon as the scheme was launched earlier this month. Sir, आप वो उसको स्कीम को लॉन्च करे और वो 21,000 का चेक सामने लाए तो अब सर आई एम नॉट दैट लर्नड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली डिड दैट चेक मेंट कि हैव वी क्लियर्ड द 21,000 हैव वी क्लियर्ड इट ओके मैम थैंक यू ओके क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि आने वाले कल में उसको करेंगे सर इंदिरा Atmiya Bharosa scheme has also been assigned to the Rural Development Department for implementation. Under the scheme, financial assistance of rupees 12,000 per annum will be released in 2 spells, 6,000 each to landless agriculture labor families. However, an allocation of 413.52 crores has been made for the scheme in the next year budget, and the amount will cover only 3,44,600 households. Apparently, the scheme is being restricted to households of landless laborers who secure only 20% day under Manrega program in 2023 and 24. I request the Minister Sahiba to clarify on this also. Sir, finally, sir, I'm coming to municipal administration, sir. In the budget speech, the Finance Minister Saab talks about the Mega Master Plan 2050 to achieve widespread industrial growth across Telangana by 2050. To quote him, the core objective of this policy is to decentralize industrial development, ensuring the Hyderabad is not the sole hub of industrial progress, but that all regions of the state experience balanced and substantial growth. However, the recent decision of the government to expand the urban spread outside GHMC under the outer ring road limits 2,053 square kilometers and extent of the boundaries of Hyderabad Metropolitan Authority to propose regional ring road 10,472 square kilometers, excluding the 765 kilometers under the purpose of future city development authority, seems to be counteract the mega master plan, sir. The government claims that these changes have been effected in view of the rapid growth of the development in the areas beyond GHMC and up to ORR and between ORR. In the recent time, ministers have hinted the GHMC will expand up to ORR. Media reports quoting official sources have even claimed the GHMC will be extended to beyond ORR and even up to boundaries of RRR. Some ministers have also claimed. Sir, municipal important subject is sir. हाँ भाई 1.5 hour होगा ऊपर सब आपका सर इम्पोर्टेंट है सर इतने चीजों को कैसा लेंगे सर बताइए जल्दी करो सर मैं जल्दी कर रहा हूँ आप सर टाइम सर देखिए सर इतने डिमांड्स हैं इतने डिमांड्स को कैसा करेंगे सर आप बताइए सर पहले ऐसे होता था सर पहले सुबह डिमांड्स को सर आई नीड 15 मिनट्स सर आई रिक्वेस्ट सर प्लीज गिव मी सर अब ये सर हमको बोल लेना है वंस अगेन आई से दैट आई एम स्पीकिंग एवरीथिंग विदाउट नोइंग वेदर आई विल गेट अ रिप्लाई ऑन दिस और नॉट without knowing that I will be getting an opportunity for clarification or also I do not know sir I would like some ministers have also claimed that the government is contemplating to form 3 or 4 corporations by splitting the GHMC and adding the adjoining municipalities and corporation into ORR into new municipal corporation. I would like the Honorable CM Saab to clarify on this issue, sir. I would also request the government to take the opposition parties into confidence and call an all-party meeting to discuss important proposals such as Master Plan 2050, budgetary demands for municipal administration and urban development in the next financial year is 16,437 crores. However, I may point out a word of caution here, sir. In the current financial year, the release and expenditure under budgetary allocation of GHMC, Hyderabad Metro Water Sewerage Service Board and HMD and HMR have shown huge shortfalls, sir. Sir, when I talk about municipalities, sir, again the same, sir. The allocation for GHMC for HCT scheme in 2024-25 is rupees 2,654 crore, but the actual expenditure during the year as shown in outcome budget is zero. Is zero, sir. तो मैं ये समझना चाह रहा हूं इसमें सर
हियर इट इज जीरो सर. सर अगेन आप बोलेंगे फिर टाइम ले रहे बोल के, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूं सर, बता रहा हूं सर. सर Hyderabad Metro Water Sewerage Service Board is allocated 3,385 crores in the current year, but the expenditure is only rupees 1,222 crores. You can see on page number 99 sir. Page number 99 में sir 1,222 है sir. Hyderabad Metro Rail is allocated 1,150 crores, but the actual expenditure is 750 sir. Page number 100. तो मैं ये बुक के हिसाब से बोल रहा हूं कि figures are not matching sir. Figures are not matching at all. You say one thing and the allocations are one sir. जब आप 3,385 करोड़ हैदराबाद मेट्रो वाटर के लिए बोल रहे हैं तो उसमें से आप सिर्फ 1,222 करोड़ दिए सर, और मेट्रो रेल के लिए 1,150 करोड़, बट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज 750 करोड़ फॉर द मेट्रो कनेक्टिविटी सर. नाउ कमिंग टू द मेट्रो कनेक्टिविटी इन ओल्ड सिटी, एन एलोकेशन ऑफ रुपीज 500 करोड़, एंड सरप्राइजिंगली द एक्सपेंडिचर इज शोन एज रुपीज 500 करोड़ ओनली सर. हो गया बोल रहे हैं सर. सर हाउएवर expenditure on airport metro connectivity is zero compared to an allocation of 100 crores. ये मैंने बोल रहा हूं sir. Again it is there on page number 100 sir. So similarly the allocation for MMTS is rupees 50 crores, but the expenditure is zero. See page number 100 sir. Page number 100 zero है इस पे. तो आप ऐलान पे ऐलान करते हैं लेकिन ये डिमांड्स के बुक्स में ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है. तो ये क्या है आखिर बताइएगा सर. गोइंग फर्दर एड सर, for HMDA, as against the allocation of 710 crores, the expenditure is only 121 crore. 710 sir, expenditure sir. Again that is also, it is also there in page number 100 sir. Sir, I would like to know the reason for this huge shortfall in the expenditure compared to the huge budgetary allocation for GHMC, HMDA, Hyderabad Metro Water Sewerage Service Board and HMR sir. Sir, when I talk about Hyderabad Metro Water Works sir, summer contingency plan, we have spoken about sir, every year we used to speak about, and there used to be a summer contingency plan for GHMC area. Sir, आज ये summer contingency plan नहीं है. Sir, I want to know sir कि इतने ज्यादा बारिश हुई, फ्लड्स हुए, श्रीशैलम के गेटा खुले हुए थे, गोदावरी में पानी था, इतना पानी सर कई दिन तक 2-2 महीने तक गेटा खुले थे, फ्लड वाटर्स को रिलीज किया गया, लेकिन आज शहर में पीने का पानी नहीं है. आज गांव में किसान पानी के लिए परेशान है, ज़िरात उसकी तबाह हो रही है, खराब हो रही है. तो सवाल यह है कि अचानक ये पानी का मसला क्यों आ गया सर. इट इज वेरी सैड सर, इट इज वेरी सैड सर. हम बोल रहे हैं सर कि दे आर नॉट मेंटेनिंग द लेवल सर. There are many unserved areas are there sir in Hyderabad city, and unserved area is not being served with tankers also. No summer contingency plan is there. We have Himayat Sagar, Usman Sagar, Singur, Godavari, and sir one thing sir, again I would say sir, there is a correction which is required sir. I don't know why the BRS government, they might be having some reasons for doing or taking the decision of giving water free sir. इतना बड़े बड़े एक अपार्टमेंट सर 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ का है, लेकिन फ्री वाटर मिलता है. अरे गरीबों को फ्री दीजिए सर, ये पैसे वालों को फ्री क्यों दे रहे हैं. हाईटेक सिटी, गच्चीबौली, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट, नहीं इसको फ्री दे रहे हैं. प्रॉबेबली टू लिफ्ट द रियल एस्टेट के लिए करे थे, पता नहीं. लेकिन ये जरूर कहूंगा सर इसमें करेक्शन की जरूरत है. लेकिन मैं ये भी कहूंगा सर रियल एस्टेट हैदराबाद का तो पूरा खत्म हो गया है सर, कुछ भी नहीं है मार्केट. थैंक्स टू I would say वो मूसी प्रोजेक्ट का डिमोलिशन हो या हाइड्रा का हो या फिर किसी का हो, लेकिन रियल एस्टेट हैज टोटली कोलैप्स्ड सर. I don't know how are we going to rescue this real estate. Many people depend on that sir. The GHMC is facing severe resource crunch now to complete the ongoing works including construction of flyovers, road widening works, skyways, footover bridges, model markets सर. मॉडल मार्केट थोड़े बने, थोड़े रुक गए सर. शादी खाने मंजूर हुए सर, चंद्रायन गुट्टे में हमारे पास में सर शादी खाने दिए थे, पूरे सिटी में दिए शादी खाने गरीबों के शादी के लिए GHMC की तरफ से सर, वो भी नहीं बन रहे हैं सर. कल्याण मंडपम दिए थे, वो भी नहीं हो रहे हैं. मार्केट्स दिए थे, वो भी नहीं हुए सर. सब पेडेस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट चारमीनार का मैंने जिक्र किया है, पता नहीं कब होगा. मंडी मीर आलम कब कंप्लीट होगी. चौके मुर्गी कब होगा नहीं मालूम. पत्थरगट्टी की रोड कब होगी नहीं मालूम सर. नए पुल पे ब्रिजेस आना है हॉकर्स का, कब होगा. वी आर वेटिंग सर. सर ये पुराने शहर को तरक्की देने के लिए मुसलसिल हम बोलते जा रहे हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं सर आज क्या होता है सर.
हॉकर्स पॉलिसी इज देयर सर. सर हॉकर पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सर. सर हॉकर्स को आज आप निकाल रहे हैं पूरे शहर में, जहां पर भी रोड पे हॉकर है उसको निकाल दे रहे हैं, आप उसकी रोजी रोटी छीन ले रहे हैं. सर एज पर वन सर्वे विच वाज डन in BRS time, sir, there are more than 10 to 20 lakh families which depend on this street vending, sir. Street vending. अगर आप उनको निकाल देंगे तो कैसे होगा सर? व्हेन वी हैव अ हॉकर पॉलिसी इज देयर, इंप्लीमेंट ऑन दैट. रमजान के महीने में हम देखते हैं सर क्या हो रहा है मुस्लिम बस्तियों में. सर मुस्लिम बस्तियों में हम देखते हैं कि हर चौरस्ते पे देख रहे हैं एक रोजेदार रोजे को खोलने को जा रहा है. ट्रैफिक को रेगुलेट करने के बजाय पुलिस बैरिकेडिंग करती है और चेकिंग कर रही है, लाइसेंस को देख रही है, इसको देख रही है. अरे रोजेदार को रोजा खोलने दो, उसके फोटोज लेकर परेशान किया जा रहा है रोजेदार को मुस्लिम बस्तियों में. तो आप बताइए क्या यह सही है, क्या यह अच्छा है? इससे आपका नाम होगा. अरे अगर देखना है सर द पुलिस शुड सी दैट सर द पीपल हु डू नॉट हैव अ लाइसेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल चिल्ड्रन, सर 12 years old, 13 years old, 14 years old, बाइक लेके चले जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आज उनको पुलिस नहीं पकड़ती है सर. यू शुड कैच होल्ड ऑफ दीज यंगस्टर्स सर, एंड वी शुड कैच होल्ड ऑफ द पेरेंट्स ऑफ दीज यंगस्टर्स सर. ये नहीं होता है सर. सर मैं ये कहना चाह रहा हूं खुली कुतुब शाह को दिए सर, पत्थरगट्टी पेरिस्टाइल सर, रिस्टोरेशन ऑफ सरदार महल, मुर्गी चौक, ये स्ट्रक्चर्स कब होगा सर? व्हेन वी सी सर ये दिस वर्क, implementation of this work was given to Khuli Qutub Shah Urban Development Authority, sir. The budget for the Khuli Qutub Shah is only 63.38 crores, which is not enough to pay the salaries also. तो इन ये प्रोजेक्ट कैसे करेंगे सर? Sir, I would also like to know, sir, the whole city connectivity, MGBS to Chandrayana covering 7.5 kilometer stretch is estimated at rupees 2,741 crores. I would also like to know when the whole city connectivity will be completed and metro train will start, sir. Honorable Chief Minister साहब had said that कि अकबर साहब 5 साल के खत्म पर हम आप बैठ कर ट्रेन में जाएंगे, छुक जाएंगे. तो मैं उम्मीद करता हूं कि ट्रेन में छुक जाएंगे, चंद्रायन गुट्टे को जाएंगे, हम बोल के बोले हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि होगा. एंड सर इंपॉर्टेंट थिंग सर, द हाइक इन प्रॉपर्टी टैक्स सर, विच रियली वरीज मी सर. सर इन लास्ट ईयर्स स्पीच सर वो जियो मैपिंग करने की बात कर रहे थे. देन आई हैड रेज्ड दिस इशू एंड आई सेड डू नॉट डू द जियो मैपिंग, मत करिए बोल के बोला हूं. लेकिन सर ओल्ड सिटी में नहीं हुआ है, न्यू सिटी में जियो मैपिंग, टैगिंग ये सब कर लिए सर. एंड दे से कि नो न्यू टैक्सेस. बट द फैक्ट इज दैट सर, इफ वन हाउस यूज्ड टू गेट a property tax of 600 rupees, the same house is now getting 6,000 rupees property tax, sir. 600 से उसको 6,000 कर दिए. न सिर्फ ये सर, they are also demanding an arrears to be paid, sir. तो ये कैसे होता है सर? ये कैसे? आप एक तरफ बोलते हैं कि आप टैक्सेस नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आप दूसरी तरफ से आप टैक्सेस को बढ़ा रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं और आप परेशान कर रहे हैं और आप डेवलपमेंट को नहीं कर रहे हैं. The survey using drone technology and detailed ground survey field survey was taken up initially in some areas and later extended to other areas, sir. Sir, I had expressed my apprehensions then, sir. And now in Toli Chowki area में भी यही हो रहा है, sir. 300%, 400% taxes increase हो गए, sir. And now coming to Hydra, sir, I may recall that when the Deputy CM Saab had announced the formation of high-sounded Hydra of Hyderabad Disaster Relief and Asset Protection Agency, had expressed my misgivings as it reminded the EVDM Enforcement, Vigilance and Disaster Management Wing that function under GHMC, sir. Though there were no provision for EVDM wing in GHMC Act, this wing function as an independent department of the charges of an IPS officer with separate office vehicle and personnel. The EVDM had played havoc in GHMC area for several years. Now Hydra is created as a super agency with its governing body chaired by the Honorable Chief Minister Saab. Its jurisdiction is spread over the urban core region, comprised the GHMC and other areas, Hyderabad, Rangadi, Medchal, Malkadgiri, Sangareddy district up to ORR. I had warned that this agency would prove counterproductive for the government if it is assigned sweeping powers with regard to penal and regulatory powers vested in other authorities in its jurisdiction. And I would say the collapse of real estate in Hyderabad and the state of Telangana, Hydra is also one of the major reasons for the collapse of real estate, sir. Collapse ho gaya real estate, I would say, sir. There are no buyers, sir. We are saying we are getting investment, but I don't understand why the government is not acting on this. Why is the government not trying to revive this, sir? Sir, and also IT Minister Saab is there. I know
He is a very learned person, sir, and he is very watchful person. सर ये गच्ची बौली में दूसरी जगह फॉरेस्ट एरियाज है, उसको आप 400 एकड़ को बेचने की बात कर रहे हैं. सी द सोशल मीडिया, सर, how the youngsters are opposing that move. They do not want those 2 lakes to disappear from there. They do not want the beautiful rocks to disappear. They do not want a concrete jungle to come there. They want that land to be protected, sir. Kindly look into that, sir. It's very important. We have one park over here.